So, good morning, my dears. Very warmly welcome to all of you. So, from the today, we are going to start our bookworm classes for competitive English. So, most welcome from the bottom of my heart. So, my dears, from the today, we are going to start in our bookworm classes. Yes, you should be bookworm for getting your target, for getting your aim, for cracking your competitive exam. So conjunctions, conjunction, my dears. It is also a part of a speech. Conjunction. We are talking about conjunction. Is a part of a speech. हम conjunction की बात कर रहे हैं. Conjunction है क्या? So we use conjunction for joining to idioms, to phrases, to words, to sentences. We use conjunction. है ना? हम conjunction का use करते हैं for joining two phrases, to clauses, to idioms, to sentences. So conjunction is basically a part of a speech and it connects two sentences, phrases, clauses together. Okay. And we'll see three types of conjunction. So today, let's begin first solving some of given sentences in our first bookworm classes. Okay. So my dears, bookworm classes. Yes, we should be bookworm. We have been told not to be a bookworm, but we should be bookworm. We must be bookworm because you can see day to day and run fast run competition in your life, in your target. Okay, so for cracking your goal, you must be a bookworm. There is nothing bad in it. Okay. So let's crack some of given sentences. Number one, conjunction. So conjunction का यूज़ कहाँ करते हैं? दो शब्दों को, दो मुहावरों को, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, जोड़ने का काम करता है. इट इज़ अ कनेक्टर, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए स्पीच. It is an important part of a speech for joining, for connecting two phrases, clauses, idioms, words, sentences. Okay, we have given some sentences. We'll crack it. Okay, number one, he fled dash he was afraid. Okay, so I'm going to use the pen. Okay, पेन का यूज़ करूँगा मैं, है ना. We'll see. Okay, so very easy concept, don't worry for that. Okay, he fled dash he was afraid. वो भाग गया क्योंकि वो डर गया था. अगर मैं ऐसे बोलूँ कि डर के कारण वह भाग गया, ही वॉज अफ्रेड, वो डर गया था और डर के कारण ही फ्लेड फ्ली का सेकेंड फॉर्म है ना, FLEE, फ्ली, फ्लेड. सो वह डर के कारण भाग गया, डर के कारण वह भाग गया के कारण. सो विच कंजंक्शन वी आर गोइंग टू यूज? सो विल यूज हियर बिकॉज. ओके, बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज. Okay, so I wrote here roughly, but you can understand. Okay, because which conjunction we are using here? हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं बिकॉज का, है ना. सो हैंड राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, फर्स्ट टाइम है ना. सो यू कैन अंडरस्टैंड वी आर यूजिंग हियर बिकॉज. ओके, बिकॉज ही फ्लेड बिकॉज ही वॉज अफ्रेड. नेक्स्ट, वेट डैश आई रिटर्न. मेरे लौटने तक प्रतीक्षा करें, मेरे लौटने तक वेट करें. वेट, रुको, इंतजार करो. डैश आई रिटर्न, जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊं, यानी मेरे लौटने तक, टिल. ओके, वेट टिल आई रिटर्न. ओके, वेट टिल आई रिटर्न, है ना, मेरे आने तक वेट करें. नंबर 3, डैश यू से सो आई मस्ट बिलीव इट. डैश यू से सो आई मस्ट बिलीव इट. So here we are going to use since you say so I must believe it. Since, है ना, चूंकि आप कहते हैं इसलिए मुझे इस पर विश्वास करना चाहिए. चूंकि आप कहते हैं, भाई आप कहते हैं इसलिए, है ना, अदरवाइज मैं नहीं करता. सो since you say so I must believe it. चूंकि आप कहते हैं इसलिए मुझे इस पर विश्वास करना ही चाहिए. आपने कहा इसलिए. यू विल पास डैश यू वर्क हार्ड. यू विल पास, आप पास हो जाओगे, लेकिन कब? इफ़ यू वर्क हार्ड, जब आप मेहनत करेंगे. आप मेहनत करेंगे तो आप पास हो जाएंगे. आप मेहनत करेंगे तो आप पास हो जाएंगे, है ना. इफ़, सो वी आर गोइंग टू यूज इफ़ इन दिस केस, है ना. यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड. एंड यू नो, आप तो जानते हैं ना, इफ़ कंडीशनल है. इफ़ कंडीशनल वाले केस में इफ़ के बाद
सिंपल प्रेजेंट का यूज़ हुआ है ना, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। सेंटेंस मीनिंग फ्यूचर का देता है, दोनों सेंटेंस कि अगर आप मेहनत करोगे तो आप पास हो जाओगे। दोनों सेंटेंस हिंदी में फ्यूचर का मीनिंग देते हैं, सिंपल फ्यूचर, है ना। बट जो इफ़ कंडीशनल के बाद जो सेंटेंस हम अप्लाई करेंगे वो इंडेफिनाइट होगा, प्रेजेंट इंडेफिनाइट। सो दैट्स वाई वी केप्ट देयर, वी केप्ट स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। डैश, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, डैश टेक इट, डैश लीव इट, चॉइस, है ना। हैंड राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान मत देना, है ना। बुक वॉर्म क्लासेस नाम जो है वो पिक किया वो इसलिए, बुक वॉर्म बनने की ज़रूरत है ना, कुछ अलग से करने की ज़रूरत है, क्योंकि सिंपली तो सभी कर रहे हैं, है ना। और आज टाइम आ गया है बुक वॉर्म बनने का, बिकॉज एजुकेशन इज़ मोस्ट पावरफुल वेपन in our life. It can transform our life. Okay, education. So that's why. So you must be bookworm. So just take it, leave it. Take it, leave it. Take it and leave it. चॉइस है आपके सामने, देखो भाई, भाई या तो इसे ले लो या इसे छोड़ दो, है ना। तो जब इस तरह कहो कि या तो या दोनों में से कोई, ना तो ना, दोनों में से कोई भी नहीं, जब ऐसी चॉइस फीलिंग हो, या तो इसे ले लो या इसे छोड़ दो। सो हियर वी आर गोइंग टू यूज आइदर और। कुछ लोग ईदर और भी बोलते हैं, बट आइदर और है ना ज़्यादा बेटर है। आइदर टेक इट और लीव इट। सो आई ट्राई टू राइट EITHER, आइदर और। यस, एब्सोल्युटली। देखो धीरे धीरे हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव हो रही है। यस, और कमेंट अगर आपने किया तो आगे मैं कोशिश और अच्छे से करूँगा, है ना। आइदर टेक इट और लीव इट, है ना। स्टार्ट ऐसे ही होता है भैया, स्टार्ट जो होता है ना, ऐसे ही छोटे स्टार्ट होते हैं, है ना। स्मॉल एफर्ट्स, छोटे छोटे एफर्ट होते हैं भाई, जो भाई 1 बाई 1 एक एक स्टेप से ही जाते हैं ना हम लोग, एक एक सीढ़ी ही चढ़ते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक कदम एक सीढ़ी पर रखा और जो दूसरा कदम है वो डायरेक्टली 4th 5th 6th 7 पे गिर जाएंगे, है ना। छोटी शुरुआत करो, अच्छी शुरुआत करो, इंटरेस्टिंग, है ना। इज दिस माई बुक डैश यूअर्स, उस एक सेंटेंस छूट गया। मेक है डैश द सन शाइन्स, है ना। मेक है डैश द सन शाइन्स, यानी अब भाई सीधी सी बात है, कोई काम हो रहा है लेकिन किसी टाइमिंग पे, यानी दो काम एक साथ हो रहे हैं, समझ लेना, है ना। भाई सन का शाइनिंग करना और है ना सूखी घास का रेडी होना, क्या बनेगी हिंदी, यानी जब अब के दौरान और के समय, अपने आप समझ में क्या आता है, समझ में आता है कि यहाँ बात हो रही है के दौरान या के समय की। सेंटेंस F नंबर का है। मेक है वाइल द सन शाइन्स, मेक है वाइल द सन शाइन्स, इट मीन्स क्या हो गया, जब सूरज चमकता है तब सूखी घास तैयार होती है। ऑब्वियसली ये पता है हमको, इट्स सिंपल, है ना। मेक है वाइल द सन शाइन्स, जब सूरज चमकता है, सूरज चमकने के दौरान घास तैयार होती है, घास सूख जाती है ना। सूखी घास तैयार कब होती है, जब सूरज चमकता है। तो के दौरान के समय ना मीन्स कोई काम यानी कुछ हो रहा है, उस दौरान कुछ और भी हो रहा है ना। सो हियर वी यूज वाइल, हमने क्या यूज़ किया, आइदर और के बाद जो F नंबर पे वाइल। इफ आई राइट, आई ट्राई टू राइट हियर WHILE, है ना, वाइल। वाइल ड्यूरिंग दोनों समझना जरूरी है ना, ड्यूरिंग और वाइल। सो वाइल इंपॉर्टेंट। ही इज, नेक्स्ट H नंबर H, ही इज विटी डैश वल्गर, है ना। ही इज विटी डैश वल्गर, ठीक है। विटी, विटी मीन्स होता है लाइक चाइल्डिश, मजाकिया, है ना। ही इज विटी डैश वल्गर। अब भाई दो चीज़ें हैं, यानी एक कोई पर्सन है वो मजाकिया है लेकिन वल्गर, यानी अचानक से एक राइजिंग और डाउनफॉल। विटी मजाकिया है, मजाकिया को पॉजिटिव वे में ले नहीं ले डजेंट मैटर, बट ये तो समझ में आ रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है। वी आर वेरी इंटेलिजेंट, यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट। सो ही इज विटी डैश वल्गर। अब वो मजाकिया है, अब उसका मजाकिया होना तक तो ठीक है ना, लेकिन कभी कभार ये मजाक अगर अश्लील हो जाए या वल्गर हो जाए तो सो उस कंडीशन में कंजंक्शन यूज करेंगे बट। ही इज विटी बट वल्गर, है ना। वह मजाकिया है लेकिन वल्गर है ना। ये नहीं चलेगा भाई, ऐसा नहीं चलेगा। सो ही इज विटी बट आई एम यूजिंग बट, BUT बट, ओके।
नेक्स्ट आई रिटर्न होम डैश ही हैड गॉन। अब टू एक्टिविटी समझ में आ रही है। आई रिटर्न होम, मैं घर वापस आ गया। ही हैड गॉन, वो चला गया था। मैं घर वापस आ गया, वो चला गया था। दोनों को अगर प्रॉपरली ऐड करें तो पहले क्या हुआ, उसके जाने के बाद मैं घर वापस आ गया, यानी पहले वो गया फिर मैं वापस आया, उसके जाने के बाद मैं वापस आ गया। ये सेंसफुल होता है, मीनिंगफुल होता है। सो जाने के बाद, आफ्टर, एवरीवन नोस, यू नो वेरी वेल, FTER है ना, FTER, आफ्टर। आई रिटर्न होम आफ्टर ही हैड गॉन, उसके जाने के बाद मैं घर वापस आ गया, है ना। आई रिटर्न होम आफ्टर ही हैड गॉन, ठीक है, उसके जाने के बाद मैं वापस आ गया। नेक्स्ट, लास्ट, ही स्टूड डैश द पेंटिंग। अब वो पेंटिंग के ऊपर तो खड़ा नहीं होगा, है ना, पेंटिंग के पीछे खड़ा होगा, ऐसा भी मीनिंग नहीं बनता है। पेंटिंग के सामने जरूर खड़ा हो सकता है। सारी चीज़ें सेंसफुल होती है, लॉजिक, है ना। हार्ड वर्क से बेटर है स्मार्ट वर्क, लॉजिकल रीजनिंग, इसी के पीछे जाएं तो ज़्यादा बेटर है। लॉजिकल हो जाए, सब काम अपने आप हो जाएगा, है ना। लॉजिकल हो जाए, बी लॉजिकल, है ना। सो सेंटेंस क्या बोलता है, वह पेंटिंग के सामने खड़ा था भी। ही स्टूड डैश द पेंटिंग, वो पेंटिंग के सामने, बिफोर, बिफोर मीन्स के सामने, ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। सो ही स्टूड बिफोर, आई जस्ट राइट हियर बिफोर। Okay, so it was the first lecture. We have seen about the conjunction, one of the important part of a speech. Next video, obviously, the next video will be more and more knowledge oriented and interesting for you. It was just a start. Thank you very much for being there. Okay, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करना। सो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें ज़्यादा भी मुझे भी लगे कि और ज़्यादा मेहनत करें आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच।